फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, welcome to Cricket Next. We have some exciting and some sad news coming out from Florida straight away. The match between Ireland and US has been washed out because of rains and wet outfield. The officials and the ground staff tried a lot to play a game as short as possible, but it wasn't supposed to be possible because of the Florida weather. And there are two big outcomes from this result. USA first of all have qualified for the Super 8. That's a big thing. And even bigger thing is that Pakistan has been knocked out of the T20 World Cup 2024 from the first round itself. I have with me Soumya Kapoor. Soumya, what do you think of this result? How do you think it is ironic for Pakistan or they didn't deserve to go ahead? मसला संभल नहीं पाया टीम से. No, it was on the cards the moment they had lost to USA, because if you look at this World Cup has been about, one single loss, and if you're losing your first game, probably or first or second game, that has been creating a problem. We saw that with New Zealand, we saw that with Sri Lanka, we might see this with England as well, losing Right. one and then that washout against Scotland. So this was Right. on the cards for a very long time now. अगर पाकिस्तान प्रोसीड कर लेता आगे तो वो उनकी किस्मत थी टोटली. आई विल बी वेरी ब्लंट ऑन दिस, but again, that's how the game works. You should have won against USA, or probably I had been talking about this. You should have won against India. Exactly. Being an Indian cricket fan, जो वो टारगेट था वो उतना था नहीं. आपने you made a Exactly. blunder in that game. You were 74 or 70 odd for one, chasing 120, Pakistan and your bat. dominated the game for majority of the match. For the 30 overs they dominated properly, 32 overs, and then that sudden shift in the game came. It drifted towards India, and that was the last nail in the coffin, because the way USA has been playing, it's just amazing. They could have also defeated Ireland. It was a washout. They shared the points, and on the basis of the points, they have moved ahead. The co-hosts have moved ahead. So it's a great thing for USA cricket. But at the same point of time, I really feel bad for the cricket fans in Pakistan. In the neighborhood. आप यार इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते अपने फैंस को यार. This is disheartening. This happened with us in 2007 when we were knocked out in the first round, losing to Bangladesh and Sri Lanka. They lost to Ireland and some other opposition as well. But again, उसके बाद जो कमबैक किया था ना इंडिया पाकिस्तान ने, वो बहुत अच्छा था. They went to the finals of the 2000 T20 World Cup. India won that. Right. हार्ड लक फॉर पाकिस्तान. वो एक गलत शॉट चला गया, बट इट वाज गुड क्रिकेट. यहाँ पे मुझे क्रिकेट देखने को नहीं मिल रहा है पाकिस्तान से. That ego, that adamant nature of certain players is very evident. Babar Azam doesn't fit in this scheme of things as far as T20 cricket is concerned. He has been horrible. He's been horrible in the PSL. He's been horrible for Pakistan. उन्होंने फ्रेंचाइज चेंज करके देख लिया, वहाँ कुछ नहीं चेंज हो रहा. कराची किंग्स खेलते थे, वहाँ अलग परेशानियां थी उनको. He was adamant on not leaving out his opening slot का पोजीशन. यहाँ पे आपको दिखा सोशल मीडिया पे शोर मचना शुरू हुआ, तो आप 3 नंबर आए. 3 नंबर पे भी आपने टीम की मट्टी पलीत कर दी. I don't understand. Fakhar Zaman is not opening for you is a different It is bewildering. It is a puzzle very for weird me. thing that Fakhar Zaman It's is a not. different puzzle for me. उसके बाद आप मोहम्मद आमिर को लिया. ठीक है यार, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. एक बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर थे. मैं भी जब वो आए थे बहुत बड़ा फैन था, बट whatever transpired after that, he should have been very he should have been away from the Pakistani cricket team purely on the basis of the kind of competition and the talent that Pakistan cricket possesses. Have someone like Shahnawaz Dhani with Haris Raw, with Shaheen Afridi, with Naseem Shah. Make a better team. आपने एक अच्छा स्टेप लिया था, आप नवाज को छोड़ के इमाद को लेकर आए थे, बट अगेन दैट डिडंट वर्क आउट, क्योंकि आप शादाब के साथ बहुत एडमेंट थे. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ शादाब खान, बट अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो बाहर निकालो यार. Exactly. Get rid of him from the 11. Babar is not performing. Rizwan is not performing. What is going on? We have been talking about all these things with the Pakistan squad. So Yeah. now they have not performed up to the mark, up to their standards. What the team, if you look on paper, this team looks quite strong, but they have not performed to that extent. But when we look at the management, the PCB, the administrators, the way the things change at the top of PCB as well. There is a new chairman every few months. A new
committee every few months. The selection committee keeps on changing. So do you think those things might be affecting the team as well when they come out on the field? We saw changes in captainship as अब well. आप अगर आपका एक स्पोर्ट बॉडी का प्रेसिडेंट आपके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता, तो देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट गोइंग, व्हिच आर नॉट राइट, यू नो, इन योर बैकयार्ड. बट यस, यू नो, आप बहुत बड़ी बात है. प्रॉब्लम क्या है ना यार, प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा मेजर इशू है. व्हाटएवर दे वांट टू डू इन, you know, it's in comparison to India and cricket. India, I mean, they don't think this. मतलब वो एक इंडिया को स्टैंडर्ड के रूप में देखते हैं, No, I understand. बेंचमार्क वो बना के बना- देखते हैं. So वो बनाना पड़ेगा. वी आर द बेंचमार्क. फ्रेंचाइज क्रिकेट के बेंचमार्क हम है. आपने T20 ब्लास्ट और वो देखा होगा, खेला होगा, लेकिन वो हम है. वो T20 क्रिकेट को शेप देने वाली IPL है. ठीक है, हाँ, अनडाउटेडली हम लोग बेंचमार्क हैं. द वे विराट चेंज टेस्ट क्रिकेट was brilliant and different. The way MS, you know, played when he was the skipper, the way he played, I'm talking about his batting, the way he used to Right. play. अगर वो खुद ऊपर आके खेलते यार 3-4 नंबर पे, तो 10,000 रन और ज्यादा थे होते उनके पूरे हाँ. करियर में, यू नो. तो वो जो कंपैरिजन इंडिया की तरफ आके करते हैं ना, वो प्रॉब्लम है. अभी तक वो छुपा हुआ इसलिए था क्योंकि T20 क्रिकेट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आप सेमीफाइनल फाइनल पहुंच रहे थे. इस बार बहुत मट्टी पलीत होने वाली है, यू नो, क्योंकि आप पिछली बार भी नॉकआउट होने वाले थे. साउथ अफ्रीका हाँ. नेदरलैंड से हारा तो वो नेदरलैंड्स क्वालीफाई वो एक कर गए. अपसेट हो गया और जिम्बाब्वे से, से हारे थे. और वो क्यों होने वाला था, क्योंकि आप जिम्बाब्वे से हार गए थे. एग्जैक्टली. आप इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए थे. विद ऑल हाँ, ड्यू अभी रिस्पेक्ट, भी यही हुआ. मैं शायद उस सीनिंग का सबसे बड़ा फैन, विराट. दैट वाज विराट कोहली, राइट. लेकिन वो मैच हारने वाला नहीं था. अगर भाई सिचुएशन होती, बाबर आजम लाइफ में कभी वो रन नहीं बना सकता था पूरे, वो चेज नहीं कर सकता था, या फॉर दैट मैटर एनी ऑफ द पाकिस्तानी बैटर्स, वो नहीं कर सकते थे. लेट्स बी वेरी ब्लंट अबाउट दिस. तो आपके साथ जो टूर्नामेंट्स में होता है, आप गिरते पड़ते पहुंचते हो आगे. इस बार यू नो कुदरत बदल गई, कुदरत ने साथ नहीं दिया. बारिश हो गई, कोई पॉइंट, वो एक पॉइंट का ही जो हम डिबेट कर रहे थे कि यार या तो ये वीकेंड जो होगा इतना ओपन, वाइड ओपन हो जाएगा कि मजा आ जाएगा, या इतना बोरिंग हो जाएगा कि मैच ही देखने का मन नहीं करेगा, बारिंग दैट इंग्लैंड नामीबिया मैच. ठीक है, Right. तो अब वही हो गया, क्योंकि बारिश पड़ गई, पॉइंट बढ़ गए, कहानी खत्म हो गई. इस ग्रुप से जो एक टीम जानी थी, दैट्स यूएसए, खत्म बात. That's USA. I will talk about USA सोनिया, बट उसके पहले एक और चीज पाकिस्तान के बारे में. गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से मीडिया में भी बात हो रही है, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, देयर इज अ नीड ऑफ एन ओवरऑल. वसीम अकरम भी काफी कुछ बोले हैं लास्ट कुछ दिनों में. देयर इज अ नीड ऑफ ओवरऑल, बट व्हाट काइंड ऑफ ओवरऑल डू यू थिंक द टीम नीड्स? लाइक ओवरऑल क्या बाबर आजम स्टेप डाउन फ्रॉम कैप्टनसी या T20 स्क्वाड से ही बाहर हो जाने चाहिए? यार 4 महीने पहले कप्तानी से हटे थे वो, 4 months. Right. And now Right. he's leading the side in a World Cup, man. Come on, you can't really do that. ठीक है, आप शाहीन से खुश नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप शाहीन से खुश क्यों नहीं थे. You know, he exactly. won a couple of titles on the trot. Personally, मेरा भी ये ओपिनियन है कि शाहीन का जो PSL जीतना था, that was more of a fluke. वो तुक्का था मेरे लिए तो, क्योंकि एक फाइनल अगर आप देखोगे, वो मुल्तान सुल्तान से, वो बहुत वैसा सीसॉ चल रहा था, एंड इवेंचुअली दे वन बाय 1 रन. तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो प्लेयर आ गया था, अगर आपके पास वो कप्तान थे, तो व्हाई नॉट, क्यों एग्जैक्टली. और अगर बना ही रहे तो फिर थोड़ा तो टेन्योर देते हैं उनको. एग्जैक्टली. और अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि यार प्रोबेबली प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोबेबली कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, प्रोबेबली कोई इशू हो सकता है, you had a very good captain in Mohammad Rizwan. Right. He's won PSL. He has been in the finals thrice or twice. दो बार तो खेले हैं वो. और सबसे बड़ी चीज ये है कि he is friends with everyone. So he's a team man. Basically अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखो ना, वो रिफ्लेक्शन आता है. I'm not saying कि बाकी लोग नहीं है, बट वो एक रिफ्लेक्शन आता है कि रिजवान को देख के लगता है कि यार जो 10 लड़के वहाँ खेल रहे हैं ना, उन सबसे बात करता है, उन सबका कप्तान. ठीक है, he was शाहनवाज दहानी के साथ ब्लेसिंग मुजरुबानी खिला दिया था उसने PSL में. दैट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम रिजवान. हिट द टेक बॉलर, पटक के जान निकाल दी थी उन्होंने सामने बैट्समैन की. तो वो कॉम्बिनेशन उसे बनाने आते हैं. प्लस हिज बैटिंग इज वे बेटर देन बाबर आजम्स. अनडाउटेडली T20 फॉर्मेट. जब टीम को जरूरत होती है वो खड़े होते हैं. तो एग्जैक्टली, क्योंकि वो आगे जाके
कवर अप करता है, जो वो लॉस्ट टाइम होता है ना वो कवर अप करता है। हाँ। वो कुछ नहीं करेगा तो यार 4 डबल भाग लेगा, हो गया आपके हाँ 8 रन की एवरेज। अगर 15वें ओवर में 8 रन राइट भाग के बना रहा और एक आधा चौका निकाल रहा तो आ गया ना 12 रन। आखिरी आपके राइट 5 ओवर में बन गए 60 रन। सो दैट्स हाउ ही वर्क्स। सो वो राइट कवर अप कर सकता है। शुड हैव गिवन हिम द कैप्टेंसी अगर हटाना ही था तो। ओवरऑल करके करोगे क्या? क्या क्या व्हाट इज द चेंज दैट यू नीड? It's a change that needs to be taken, that needs to be made at the helm, which is the captaincy. वो आपने इतना ओवर हाइप कर दिया है एक प्लेयर को, इतना ज्यादा सर पे चढ़ा दिया है कि बॉस उसे भी नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है। प्रॉब्लम एक्चुअली बाबर की भी नहीं है, प्रॉब्लम है सोशल मीडिया का है, और ये प्रॉब्लम जो है फॉर्मर क्रिकेटर्स की है। आई टेक द नेम रमीज राजा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, बट रमीज राजा से जब विमेंस पीएसएल की बात करी थी ना, मैं वही कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उन्होंने बहुत बड़ी बात करी थी कि अरे हम तो पहले शुरू कर देंगे, हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, पूरा चेंज कर देंगे। विमेंस प्रीमियर लीग के 2 सीजन हो चुके, WPSL अभी तक आया भी नहीं, लॉन्च ही नहीं हुआ, कैंसिल हो गया था लॉन्च उसका, अभी आई थिंक ड्राफ्ट भी रेडी नहीं होगा शायद कैंसिल हो गया था वो सीजन, जिस सीजन आना था उससे 1 महीने पहले कैंसिल हो गया था। एंड ही हैड द पावर, ही वाज एट द चेयर। तो बड़ी बड़ी बात, मेरा पॉइंट ये है कि बड़ी बड़ी बातें मत करो यार, डोमेस्टिक सर्किट को अपने ठीक करो। अच्छे लड़के हैं आपके पास, 3 फॉर्मेट के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। फ्रेंचाइज क्रिकेट आपने क्रिएट कर लिया, पाकिस्तान सुपर लीग क्रिएट कर ली है, उसे एनहांस करने की कोशिश करो, लड़ो मत, लड़ने मत आओ कि अरे चैंपियंस ट्रॉफी का ये और वर्ल्ड कप का होस्टिंग वो और ऐसा वैसा। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन क्रिकेट यार, मतलब क्या कर रहे हो यार आप। I have had a chat with one of the Pakistani fans who stay in US, okay, and I can sense that the kind of frustration that his team has already given him in this tournament is just beyond words. बात ही नहीं करना चाहते यार वो, he is not even expecting कि ये जीतेंगे या आगे क्वालिफाई करेंगे या आगे प्रोसीड। That's the kind of mandate your fans have for you। खेलते किसके लिए हो आप? फैंस के लिए खेलते हो ना यार। Bizarre, it's horrible, disappointing, it's dismal, it's weird, I would say. And last but it's thing, not surprising out of all the surprising adjectives you have used surprising नहीं 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 है सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि दिस वाज ऑन द कार्ड्स एज आई सेड, और on ये the cards exactly इस एडिशन से नहीं है, इस एडिशन से नहीं है। हाँ दिस हैज बीन ऑन द कार्ड्स फॉर द पास्ट कपल ऑफ एडिशंस और सो। हाँ वो होना था, ये वो बच रहे थे बस, ठीक है ना। तो boss, you need a lot of change. And lastly, I would just mention, please ask Babar Azam to stay away from from the T20 T20 format, T20 cricket. Just let him play 50 over, let him open that, or probably one down, whatever it is, whatever he wants to do with it. Just play on those position, क्योंकि उससे नीचे आप आओगे तो फिर आप और मट्टी पलीत करोगे टीम हाँ की। वो करने Just do that. Get back someone like Asif Ali, who can hit sixes on will। मतलब वो जिगरा है यार उसमें, वो बोल के 4 छक्के मारता है उसने। I was watching one of the highlights of what Asia Cup, if I'm not mistaken, मेरे को exactly याद नहीं है, उसने शादाब को सिंगल डिनाई किया, नेक्स्ट ओवर दे नीडेड what 24 दे नीडेड, शादाब सिंगल के लिए आया, उसने डिनाई किया, 4 छक्के मारे उसने अफगानिस्तान के लिए। That's the kind of mind setup that guy has. Stop booing your own players. Azam Khan on field क्या कर रहा है? That should be the critical, that should be the discussion जिसको criticism attract करना चाहिए, not because कि उसके body structure क्या है या उसकी fitness, ठीक है fitness पे बोलो, but understand उसको कोई problem तो नहीं है। बूइंग मत शुरू कर दो उसकी, ट्रोलिंग मत शुरू कर दो यार। 25 साल का लड़का है वो बेचारा, अच्छा खेलता है वो, he's a good guy, he's a very good player। उसको टाइम दो, एज अ बैट्समैन टाइम दो, ठीक है कीपर तो आपके पास बतेरे हैं, उसको एज अ बैट्समैन टाइम दो। सैम आयूब, आई कैन गो ऑन एंड ऑन यार। सैम आयूब इज देयर, गेट इन शाहनवाज दहानी, get in someone like I was reading about one of the spinners as well, Okay. Abrar is there, उनको लेकर आओ। शादाब को रेस्ट दे दो थोड़े दिन के लिए, इमाद को कंसिस्टेंटली खिलाओ, फकर जमान से ओपन कराओ यार। ही इज अ बॉर्न ओपनर मैन, मतलब उससे बेटर ओपनर मैंने नहीं देखा इस पिछले डेकेड में इन पाकिस्तान। अनडाउटेडली मतलब एक शारजील खान थे जो लेफ्ट हैंड, जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 3 ओडीआईज में 350 करी थी, दैट वाज हिज रिकॉर्ड। शारजील खान इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, as far as I remember वही थे। या तो इंडिया आके जो 2-1 से इंडिया के अगेंस्ट वो जीत के गए थे 2012 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट।
ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंडेड ओपनर पाकिस्तान में मुझे कोई दिखा है तो फ़कर से बेटर कोई नहीं दिखा है, उसे ओपन कराओ, लेट रिजवान टेक द चार्ज, हैव अ वेरी वेरी बैलेंस नंबर 3। या तो आप बाबर को एक क्लैरिटी दे दो कि बॉस दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू, वी डोंट रियली केयर अबाउट योर कैप्टनसी बट एज अ बैट्समैन यू रियली नीड टू पुश द पैडल। उसके बाद 4 नंबर पे आपके पास बतेरे लड़के हैं यार, किसी को भी खिला दो। इफ्तिकार को लेके मत डोलो यार, मतलब ठीक है, ही इज़ अ गुड प्लेयर, मैं भी मानता हूँ, ही इज़ अ वेरी हैंडी प्लेयर, लेकिन एक ओवर बिना बैटिंग के फील्डिंग में भी वो कैचे ड्रॉप कर रहा है, मिसफील्ड कर रहा है, तो फिर फायदा क्या है? गेट एन आसिफ अली ना, सेम काम करेगा वो। लेट अस होप कि पाकिस्तान ये सारी चीजें कंसिडर करता है एंड मे बी वी सी अ बेटर रिवैम्प्ड साइड गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, बट फॉर नाउ विल मूव ऑन टू यूएसए। सौम्या, हाउ बिग इज दिस अ थिंग फॉर यूएसए क्रिकेट, फॉर क्रिकेट ओवरऑल, कि सुपर 8 में क्वालिफाई हुए यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम, दे हैव बीन playing T20 World Cup for the first time and see the Super 8 में qualify, and how big is this thing for them? It's great यार, it's great, the kind of cricket they have been playing, it's really good, it's really heartening। and उन्होंने इंडिया को भी छकाया था, 3 विकेट तो उन्होंने Right. निकाल दिए थे। It was, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, बट अगेन that was very very good cricket from them, especially from the bowlers। और अच्छा है बिकॉज बहुत बात हो रही थी कि यार आप यूएस में क्रिकेट खिला के यूएस में क्रिकेट कैसे प्रमोट करोगे, एंड दिस वाज द ओनली वे, बिकॉज आपके पास लोकल लैड्स उतने हैं नहीं टीम के अंदर, इंडियंस, पाकिस्तानी, एक दो लोकल लड़के, कुछ अफ्रीकन, कुछ प्रॉब्ली यूरोपियंस, आपके पास वही क्लब करके टीम बनती है, और दैट्स हाउ इट वर्क्स राइट इन दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये लोकल वे में क्रिकेट को बढ़ाना का बहुत अच्छा तरीका है। प्लस यू ऑल्सो हैव एमएलसी, टाइम लगेगा, एटलीस्ट 7-8 साल कहीं नहीं जा रहे क्रिकेट को प्रमोशन मिलने में उतना ज़्यादा यूएस के अंदर, व्हाट माय टेक इज ऑन दिस। बट अगेन एज आई सेड, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर यूएस क्रिकेट टू गेट दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस टू इंस्पायर द यंगस्टर्स दैट दे कैन डू गुड एट द हाईएस्ट लेवल। आप क्वालिफाई कर गए हो, 2 मैचेस जीते हो, बड़ी टीम को हरा के आए हो, एक बड़ी टीम को आपने थोड़ा प्रेशर में लाए, दैट वाज अ ग्रेट थिंग। और प्रॉब्ली team like आयरलैंड, India. एग्जैक्टली, एंड प्रॉब्ली वी आर टॉकिंग अबाउट 3 टेस्ट प्लेइंग नेशंस, जिसमें से एक को आपने हरा दिया, एक को आपने फ्रस्ट्रेट किया, और तीसरी को शायद व्हाट वी वर थिंकिंग यू वर ये इन हरा दैट देते, आसानी से हरा देते। एग्जैक्टली, हरा सकते थे। can't really take anything away from Ireland also, वो भी कभी भी सरप्राइज कर देते हैं, they have a very good side। I don't know how and why they didn't qualify for the Super 8, but again बहुत permutation combinations आ गए उसमें भी। But yeah, so you were up against 3 test playing nations and you performed really well। I just hope they perform in the same manner in Super 8। Now it's going to be a very difficult task, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी टीमें आपके सामने आएंगी, बट अगेन T20 फॉर्मेट जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। आई जस्ट होप ऐसी ही परफॉर्मेंसेज आती रहें, और अच्छा लग रहा है कुछ इंडियंस अच्छा परफॉर्म करें तो और अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली इंडियंस काफी है वो साइड में, तो इंडिया के लिए भी एक अच्छा न्यूज न्यूज़ है, एक एंटरटेनमेंट है अच्छा कि लोकल लैड्स who have played with Rohit, someone like Saurabh Netravalkar who has played with Rohit, and Sandeep Harmeet Sharma, has played with Rohit and Surya Sky. Kumar, Harmeet, and KL Rahul, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ट्रू। आपने सुपर 8 की बात की सौम्या, फ्रॉम व्हाट द ग्रुप्स आर शेपिंग अप, यूएसए विल फेस साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड ऑल प्रोबेबिलिटीज इंग्लैंड एज वेल। जिस तरह से वो जीते ओमान के सामने, तो सीम्स लाइक दे विल आल्सो क्वालिफाई। सो हाउ बिग इज दिस फॉर द T20 वर्ल्ड कप? डू यू थिंक कि थोड़ा सुपर 8 में थोड़ा एक डल फेज आ जाएगा जब टीम्स यूएसए के सामने खेलेंगे, या इट विल गेट ओनली मोर इंटरेस्टिंग द वे दे हैव प्लेड इन द ग्रुप स्टेज सो फार? ये डल नहीं होगा, क्योंकि आप इजी नहीं ले सकते टीम को, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर्क रियली हार्ड एंड गॉट देयर, दे रियली पुश देमसेल्फ इनटू द सुपर 8, सो आप हल्के में नहीं ले सकते। एंड साउथ अफ्रीका का जैसा क्वालिफिकेशन रहा है ना, आई एम रियली डाउटफुल कि दे आर गोना मेक सम, या तो वो उसको रीजिक कर लें यार प्रॉब्ली, क्योंकि दे वर चेजिंग व्हाट 104 इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेंस्ट नीदरलैंड, उसमें भी उनकी बैंड बज गई थी। इट सीम्ड एट वन पॉइंट इन टाइम कि चेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो ट्रैक्स भी उस तरीके थे कि अगर आप 104 लगा रहे हो तो 140 लग रहे हैं, बट अगेन 140 फॉर अ साउथ अफ्रीकन साइड इज नॉट दैट बिगर टास्क। तो वो थोड़ा सा मुझे डाउटफुल है कि कहीं ना कहीं दे माइट गिव एन एज टू अदर टीम्स, उनका हिस्ट्री है वो वापस। बट अगेन you can't take USA lightly, or for that matter any of the teams lightly, क्योंकि अफगानिस्तान तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रही है, स्कॉटलैंड जीत के आ रही है अगर आती है तो,
You know, England are back in that kind of a groove. I mean, not comparing the other with them with other sides, but एक मैच हारने के बाद, एक मैच वॉश आउट होने के बावजूद दे आर इन द फ्रे. दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हम न्यूजीलैंड की बात कर रहे थे कि यार दूसरा मैच हारते तो बाहर हो जाएंगे. सो अगर इंग्लैंड अभी भी उस कंसिडरेशन में बना हुआ है, राइट, देन इट्स अ बिग थिंग. सो लाइटली आप नहीं ले सकते टीम को, किसी को भी, स्पेशली यूएस को, स्पेशली अफगानिस्तान को, स्कॉटलैंड को भी इनफैक्ट. बट स्कॉटलैंड रिलेटिवली थोड़ी मुझे वीक लगती है इन दोनों के कंपैरिजन में. बट मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत कॉशियस होकर खेलना पड़ेगा. ये है, फॉर ग्रांटेड लेके नहीं खेल सकते कि यार ठीक है हल्की टीम आ रही है या यू नो एसोसिएट नेशन आ रहा है तो वी कैन मेक इट वन साइडेड नहीं जाएगा. दैट्स फॉर श्योर. वन साइडेड तो नहीं जाएगा. ओके, थैंक यू सौम्या फॉर ऑल योर इनसाइट्स. लेट्स होप कि यूएसए सुपर 8 में भी कुछ ऐसे ही परफॉर्मेंसेस दिखाए, मे बी साउथ अफ्रीका या वेस्ट इंडीज के सामने थोड़े हिकअप्स क्रिएट करें उनके लिए. But for now, we will end this here. Thank you for all your insights. Thank you for watching us. Stay tuned to Cricket Next. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म. क्योंकि क्रिकेट मतलब